That is called Brahma-bhuta avastha, or a self-realization stage. So, what is the difference between self-realized stage and doggy stage? Means bodily conceptualized. The difference is that as soon as you become self-realized, you become jolly. This self-realization is explained in the Bhagavad Gita. Brahma-bhuta prasannatma na sochati na kankati samas sarveshu bhuteshu madbhakti lavati param. This self-realization means as soon as we understand that you or I am not this body, I am spirit soul, then immediately we become jolly. And what is jolliness? Na sochati na kankati. A jolly person never lament nor desire. That is Krishna consciousness. He has no want and he has no loss. Material life means always want and always loss. And spiritual life means no loss, no desire, no hankering. So one can distinguish his spiritual life and material life by simple formula. This simple formula, material life means always in want and always in lamentation. And spiritual life means no hankering and no lamentation. When one is fixed up in spiritual life, it is said, Guru Rapi Dukkhena na vicharate. When there is very, very acute reverse condition of life, one is not disturbed. That is spiritual life. And samas sarveshu bhuteshu, at that stage only there is possibility of so-called unity, fraternity, friendship. Your friends, you have got slogan, what is that? Fraternity, friendship. No, eternity. There is equality, fraternity and what other things. So, France is a very cultured country historically, but where is fraternity? The history we read, there was 7 years war with England, 100 years war with England. Then Napoleon, he conquered, so all the parts of the, where is fraternity, eternity? Last time when I came in your country, in Paris, somebody showed me one church. From that church there was ringing up the bell and immediately people would come and kill the Protestants or something like that. Is it not right? So anyway, on the material platform, there is no possibility of equality, fraternity, and nothing. It is not possible. Unless you come to the spiritual platform, Brahma-bhuta prasannatma, there is no question of equality, fraternity. So in the United Nations, they are trying for that unity, United Nations. But where is unity? Every year there is a new flag. There is no question of fraternity or equality. Just like in animal life, there is no question of fraternity or equality. Similarly, if we keep ourselves in the bodily concept of life, that is animal life. So long we keep ourselves as I am French man, I am German man, I am English man, I am Indian man, or so many there are nationalities, there cannot be any fraternity, equality. We have come to the platform of Krishna consciousness or Brahma-bhuta, then there will be fraternity, equality. And factually you can see in this movement all classes of men, all nationality, all religion, all color, they are coming together and chanting Hare Krishna and dancing. This is wanted. So don't be misled by the leaders of so-called eternity and fraternity. It is not possible. They are called Andhādathandhvairupūniyamāna.
just like a blind man is trying to lead other blind men. So come to this platform of Krishna consciousness, this fraternity and equality, also eternity. Eternity means that we living entities, we are eternal, never die or never take birth. That is stated in the Bhagavad Gita. Now we have got French edition of Bhagavad Gita. You will find there. Have you got that book here? No. You will find in that book, न जायते नाम्रियते वा कदाचित् नित्या शाश्वतयं न हन्नते हन्नमाने शरीरे. You will find this verse that we living entities, we have no birth and no death. न जायते. So, if we simply understand one verse, there are 700 verses. If we simply understand one verse only, as he has explained, then immediately we become Brahma-bhuta, liberated. And that is the perfection of human form of life. A dog cannot understand. If I say to the dog that you are not this body, you are spirit soul, you are eternal, he has no power to understand. And a human being can understand. He has got the capacity. So we are trying to educate all people, all nations of the world to understand this one verse. That's all. Na jayate vamriyate va kadachi. If he simply understands this one verse, he immediately becomes liberated. And actually, human life is meant for understanding this philosophy or this truth. Then his life is successful. And as soon as we understand that we are eternal, we are not mortal, then naturally our inquiry will be where we can live eternally. That will be the inquiry. In the material world, as you are forced to take birth and death, so similarly in the spiritual world, the first advantage is there is no birth and death. That's the opposite. So our process is to train people how to go back to home, back to God. That is the only education required in this human life. So now, by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, this movement has come to your country, and especially in a nice village like this, utilize it properly. It is a very ideal place. Not only this, there are many, thousands of places like this. People should take advantage to live in such nice place, produce their necessities of life and keep them fit and chant Hare Krishna and realize self. We don't say that you starve or become weak in health or weak in intelligence. No, you remain quite fit in intelligence and world, but don't be unnecessarily in need. The difficulty of the modern educated person is not educated, but so-called educated. They are attracted in the city for so many things, unnecessary. Just like the club, the restaurant, the liquor, the cigarette, so many things. But if your attention is diverted to Krishna, you will not feel inclined to enjoy all these unnecessary things. That is the taste of spiritual life, that bhakti parasanubhava virakti annatasya. Bhakti, advancement of devotional life, means no more taste for all this nonsense. So you'll see practically these boys and girls, they are young men, young girls, they have got so many desires, but they have given up.
And they are able to continue like that because they are making progress in spiritual life. So, read our books, chant Hare Krishna, live very simple life, produce your own necessities. Don't go to the town. Of course, for selling books you can go. So our policy is not that to decline material advancement of civilization, but our instruction is that do not forget your real business, self-realization. Unfortunately, material attraction is so strong that it makes us forgetting our spiritual necessities of life. So, this human form of life is given by nature for fulfilling our spiritual necessities. But if we neglect, then jang janga vapi smaran loke tajattantre kalevaram. So, in the Western countries, they are very much fond of keeping best friend, the dog. So, at the time of death, if you think of your favorite dog, then in next life you will become dog. But you cannot surpass the nature's law. This is the nature's law. So, one gentleman, what is his name, Fisher, in Detroit, he had 2 dogs and he buried them in silver casket. So he was very rich man and his house is very big palace. But at the time of death he was thinking of this dog, and if he becomes dog next, then what is the value of this material advancement? Therefore, intelligent man shall always think of Krishna, so that at the time of, if he is able to think of Krishna, his life is success. जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you very much. आप लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना. So it's very very important to hear every day from Srila Prabhupada. You know, आप सोचो 15 मिनट का लेक्चर से प्रभुपाद ने दिया है पेरिस में, पर it's so powerful. हम लोग वीकली क्लास करते, that's okay, है ना, क्योंकि हम फिजिकली भी या पर्सनली हमें डिस्कशन हो. बट अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में या अगर हम इस्कॉन में हैं, if we want to understand the mood and mission of ISKCON and devotees spiritual life, every day we should hear something from Prabhupada. 5 मिनट हो, 10 मिनट हो. जैसे एग्जाम्पल्स है क्या ना, कोई मान लो खाना खा रहे ना, भोजन प्रसाद पा रहे, उस समय प्रभुपाद का लेक्चर चला सकते हो. कोई बाथरूम में है तो बाथरूम में प्रभुपाद का ऑडियो चला सकते हैं. आप जा रहे हो ऑफिस, कहीं बाहर जा रहे हो, उस समय आप प्रभुपाद का लेक्चर सुन सकते हो. वी हैव सो मच टाइम. और अब अगर सिंपली 10 मिनट भी सुनोगे तो इट्स वेरी वेरी पावरफुल इफेक्ट होगा. आपके सारे जो डाउट है वो क्लियरिफाई हो जाएंगे, और प्रभुपाद जी का पर्सनली हम संग कर सकते हैं. तो देयरफॉर आप लोग भी ये प्लान करिएगा. सुबह अगर हो जाए बहुत ही अच्छा है 10 मिनट के लिए. तो अभी आप लोगों से कुछ डिवोटी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक पॉइंट जो प्रभुपाद जी के इतने महत्वपूर्ण लेक्चर से आप लोगों ने, एक पॉइंट, जस्ट शेयर वन पॉइंट जो आपको बहुत ही अच्छा लगा, तो आप उसको शेयर कर सकते हो ना. फिर हम लोग थोड़ा और चर्चा करेंगे और बाद में प्रश्न उत्तर बाद में लेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन. लेकिन आप लोगों से सुनना चाहते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. आप लोग हैंड रेज कर सकते हो. हैंड रेज करके फिर सिद्धांत प्रभु आप उनको पूछ सकते हो. हैंड रेज आप कर सकते हो जो शेयर करना चाहते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं. हाँ, एक मिनट जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. मैंने जो प्रभुपाद जी के लेक्चर से सुनकर भी मेरे जो उसमें माइंड में है वो ये कि हरे कृष्णा चैंटिंग करना और लीव अ सिंपल लाइफ, बट डोंट फॉरगेट आवर रियल सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ लाइफ. यस, थैंक यू ना. चैंटिंग हरे कृष्णा वेरी वेरी सिंपल वे. सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है. आपको घर नहीं छोड़ना है, आपको जंगल नहीं जाना है. पहले के अगर सतयुग में अगर हम लोग आते, जूम मीटिंग भी नहीं हो पाता है कि नहीं, है ना. जूम मीटिंग भी आप नहीं कर सकते सतयुग में, बट वी आर गेटिंग कृष्ण कॉन्शियस इन जूम. आपको हिमालय में जाना होगा, आप खाना नहीं खा सकते हो, फैमिली के साथ नहीं रह सकते हो.
जॉब नहीं कर सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते हो, पैसे नहीं कमा सकते हो, पर बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले जाओ। आप घर में रहो, कहीं रहो, जॉब करो, कुछ भी करो, बस हरे कृष्ण करो। सो सिंपल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है सोनाली शुक्ला जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी की ये लगी कि सच में अगर एक डॉग है, मैं उसको कितना भी बोलूं कि ये बीट बैग है आप करो, ये भगवत गीता है आप पढ़ो, उसको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको नहीं समझ में आएगा मैं उसको क्या बोल रही हूँ। बट वी आर ह्यूमंस, मैं भले ही मटेरियल दुनिया में हूँ, मैं तमोगुण में हूँ, मैं उस इंसान को एक बार बोलूँ, 2 बार बोलूँ, 10-15 बार बोलूँ, एक बार तो उसको आएगा ना कि हाँ ये बोल रही है, सच में मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे चैंट करना चाहिए, मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो दिस इज वेरी ट्रू, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। तो जैसे हमने भजन में बताया था, नरोत्तम दास ठाकुर उसी भजन में गाते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। So we have got this human form of life, but we are so misfortunate कि जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझ के मैं जहर पी रहा हूं, मतलब मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं कर रहा हूं। We are getting this facility because human form is the junction। जैसे आप मान लो पंजाब से दिल्ली आया ना, दिल्ली एक जंक्शन है यहाँ पे। अब दिल्ली से आप मुंबई की तरफ भी जा सकते हो, कोलकाता की तरफ भी जा सकते हो। तो ह्यूमन लाइफ इज अ जंक्शन। आप एनिमल भी बन सकते हो, आप देवता भी बन सकते हो, और आप भगवान के पास भी जा सकते हो। तो सिर्फ मनुष्य जीवन में ये सुविधा होते हैं। देवता लोगों के पास इतना ऑपुलेंस होते हैं, वो भक्ति नहीं कर पाते, और पशु योनि में दे डोंट नो एनीथिंग। सो ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट यू कैन से इंपॉर्टेंट स्पेसीज ऑफ लाइफ आउट ऑफ 84 लाख स्पेसीज, और खास करके जो भारत में जन्म हुआ है। और हमें ये सब मिलने के बाद भी अगर हम राधा कृष्ण की वर्शिप नहीं करते, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करते हैं, जानिया सुनिया विष खाइनु, इसको भी एक्चुअली एक श्लोक में कहा गया आत्महत्या, स्पिरिचुअली सुसाइड। एक सुसाइड शरीर का होता है, लेकिन आत्मा, हाँ, हम अपने आप को मारते हैं, फिर क्या होगा? अगला जीवन में हम फिर पशु बनेंगे, कुत्ते बिल्ली बनना पड़ेगा। दैट इज अ साइंस। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है सौम्य व्रत साहू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बाद में। अभी हमारा डिस्कशन, आपने क्या सुना, क्या सीखा इसमें से? अमल सिन्हा प्रभु जी हैं। अमल सिन्हा प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट कृष्णा इन हरे कृष्णा। कोई है? अनम्यूट अब हो गए, आप बोल सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे प्रभुपाद जी की लेक्चर से ये अच्छा लगा कि जो एक व्यक्ति था वो डॉग को लव करता था, और उसने डेथ के टाइम भी डॉग को याद किया, और ही बिकम अ डॉग इन हिज अपने नेक्स्ट जन्म में भी वो डॉग बनेगा। यस यस, ये लाइन मुझे अच्छी लगी। और इंटेलिजेंट पर्सन ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा। यस, वेरी नाइस। सो भगवद गीता में कहा यम यमापि स्मरण भावम, अंत में जो सोचते हैं उसी प्रकार हम शरीर लेते हैं एक्चुअली, और अंत में वही सोचेंगे जो पूरा जीवन करते हैं हम। तो भरत महाराज की कथा में जानते हैं कि भरत महाराज भक्ति कर रहे थे, लेकिन अंत में हिरण का चिंतन हुआ, वो अगला जीवन में हिरण बने। तो कलयुग में यही समस्या है। एक्चुअली हमारे पास गौ माता होना चाहिए, गाय होना चाहिए। गाय सत्वगुणी होते हैं, उनके स्पर्श से, उनके दर्शन से हमें पवित्रता होती है। लेकिन लोग गाय को बाहर रखते, कुत्ते को घर में रखते, डॉगी को। आप कुत्ता भी बोलोगे ना, गुस्सा करेंगे। कुत्ता बोल दिया, इसका नाम है स्वीटी, टॉमी, है ना, नाम रखते हैं, बेटा बोलते हैं उसको। तो दिस इज कलयुग। कलयुग में ऐसे ही, कलयुग में उल्टा उल्टा होता है। कलयुग में लोग जैसे बोलते हैं, पहले घर में लोग खाते थे, बाहर शौच क्रिया के लिए जाते थे। अभी बाहर खाते हैं और घर में शौच क्रिया करते हैं। और आजकल घर में ऑल्टर की जगह, भगवान की ऑल्टर की जगह टीवी होते हैं, वही उनका दर्शन करते हैं, भगवान वही है। तो कलयुग में इस प्रकार से होते। कुत्ते को घर में पालते हैं, कुत्ते वेरी डर्टी। हम लोग भी कुत्ते पालते थे, कुत्ते के साथ खेलते थे। डॉग इज वेरी डर्टी एक्चुअली। एंड गौ माता, उनका गोमूत्र हो, गोबर हो, हर प्रकार से हम सबके लिए हितकारी होती है।
लेकिन लोग कुत्ते पालते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। और कुत्ते क्या खाते? स्टूल। ठीक है, थैंक यू हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट है एक हर्षवर्धन प्रभु जी। हर्षवर्धन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर से ये सीखा कि जो हमें कंफ्यूजन थी और ये जो डर थी माइंड पे कि ना हम बॉडी हैं और हम your sound is not clear। प्रभु जी अब आ रही? सिद्धांत, आपको साउंड आ रही है इनका? प्रभु जी थोड़ा ब्रेक हो रहा है, आप थोड़ा लाउडली बोलेंगे हर्षवर्धन प्रभु जी? स्पीक अ लिटिल लाउडर प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, थोड़ा लाउडली आप बोलने की कोशिश करिए जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। प्रभु जी, मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर से ये सीखा कि ना जो हमारी कंफ्यूजन थी इतने देर से कि ना कि हम बॉडी हैं, हम सोल नहीं है, और अभी कंफ्यूजन थी और हमें अगर हमारी कुछ लग जाती है तो हम उसमें कंसर्न हो जाते हैं कि हमें बॉडी में क्यों लगी। पर जैसे अपन को पता चल जाता है कि हम सोल हैं तो ये कंफ्यूजन नहीं रहती है। यस, थैंक यू। है ना, और प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से बोला, तो थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार जब प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनोगे, आप नोट बनाएगा, एक पॉइंट को ध्यान, पूरा दिन आप मेडिटेट करिएगा उसके ऊपर। इट्स वेरी पावरफुल। तो जस्ट मैं थोड़ा सा जो प्रभुपाद जी ने जो बताया कि प्रभुपाद ने बोला कि हम लोग हर नगर ग्राम में हम इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। सो प्रभुपाद इज नॉट एन ऑर्डिनरी साधु, कोई साधारण, मतलब ठीक है साधु है, बड़े महात्मा थे, विदेश में आके प्रचार के, नहीं। ही इज द आचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्ट किया है और ग्रंथों में हमारे प्रभुपाद के बारे में ऑलरेडी प्रेडिक्शन है कि भगवान ने बोला मेरा एक सेनापति भक्त आएंगे और पूरे विश्व में इस हरिनाम को लेके जाएंगे। सो प्रभुपाद इज द सेनापति, द कैप्टन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो ही इज नॉट ऑर्डिनरी सोल। भगवान ने जो नहीं किया प्रभुपाद जी लेके छोड़ दिया। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने सबको कृष्ण प्रेम नहीं दिया, वो राधा रानी के भाव को लेके आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने भारत वर्ष में प्रचार किया लेकिन पूरे विश्व में नहीं किया। प्रभुपाद जी के लिए छोड़ के गए थे वो। तो प्रभुपाद जी वेरी वेरी स्पेशल साधु। आप सोचो भारत में आप किसी को बोल के देखो भगवत गीता पढ़ो, जप करो, मांसाहार मत करो, आपको बोलेगा गवार हो, अभी तो एंजॉय का लाइफ है, एंजॉय करो। ये प्रभुपाद जी हिप्पीज को जाके अमेरिका में जो देयर फुल्ली ऑपुलेंट, उनके पास सब कुछ था और वो प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स बने और वो लोग भारत में आके प्रचार किए, है कि नहीं? हम लोग भी थोड़ा उत्साहपूर्वक इस्कॉन से इसलिए जुड़ जाते हैं। इस्कॉन में हर प्रकार के लोग हैं कि नहीं, अमेरिकन भी है, बड़े बड़े लोग भी है, जॉर्ज हैरिसन, एल्बर्ट फोर्ड, इस प्रकार। तो इस किस लिए आज जो हम इस्कॉन देखते हैं, बड़े बड़े इस्कॉन के मंदिर, इस्कॉन में भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इतने भक्त बन रहे हैं, ये हमारे प्रयास से नहीं, ये प्रभुपाद जी के कृपा से। प्रभुपाद जी ने ऐसा इस्कॉन को स्थापित किया है। और चैतन्य महाप्रभु ने वो बताया भविष्यवाणी, पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। In every town and village, the chanting of Hare Krishna will be spread, and that Prabhupada has done actually. प्रभुपाद जी को वो श्रेय प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद ने ऐसे करके दिखाया। आज पूरे विश्व भर में आप कहीं पे भी जाओ, हमारे प्रोग्राम्स में पाकिस्तान से भी डिवोटी आते हैं, है ना, और बाकी दुबई से भी आते, तो इंडियंस ही है लेकिन बाहर तो विदेशों से भी भक्त लोग आते हैं इसमें। चाइना में प्रचार है, अरेबियन कंट्रीज में, हर जगह जो है प्रभुपाद जी की कृपा से यार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण हो रहा है। चाइनीज जो कम्युनिस्ट है वहां पे गवर्नमेंट ने भगवत गीता पब्लिश की है। पाकिस्तान में रथ यात्रा कर रहे हैं, रशिया जैसे देशों में हजारों भक्त हैं। व्हाई इट्स हैपनिंग? प्रभुपाद जी की कृपा से। हम लोग भी आए हैं, ये भी एक चमत्कार है। ये आज से पहले इस प्रकार से युवा पीढ़ी के लोग, जवान लोग भक्ति नहीं करते थे, मतलब जैसे रिवोल्यूशन प्रभुपाद ने स्टार्ट किया और हम भी सोचते कि हम कैसे भक्ति में आए। वी डोंट हैव एनी डिजायर, पहले डिजायर नहीं था कि हम भक्ति करेंगे। आप लोगों में काफी लोग कम उम्र में भी भक्ति को लिए, इट्स वेरी गुड फॉर्च्यून। लेकिन ज्यादातर हम लोग आते हैं दिल्ली या कोई जगह पे पढ़ाई के लिए, फिर जॉब के लिए, पैसे कमाएंगे, एंजॉय करेंगे, बट सम और अदर प्रभुपाद की कृपा से अभी हम भक्ति कर पाए। सो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने बोला व्हाई वी प्रीच कृष्ण कॉन्शियस, कोई बताना चाहेंगे? प्रभुपाद ने स्टार्टिंग में बोला था व्हाई वी प्रीच कृष्ण कॉन्शियस। एनीबॉडी वांट्स टू मेक एवरीवन हैप्पी? यस, टू मेक एवरीवन हैप्पी। तो सोचो, therefore Prabhupada is the real well wisher of everyone. जैसे प्रभुपाद जब चिट्ठी लिखते थे, प्रभुपाद नीचे लिखते थे योर एवर वेल विशर। जैसे प्रभुपाद जी सबके हितैषी, उसी प्रकार हमारे जो गुरु महाराज है, भक्त लोग हैं, हमारे रियल हितैषी है और वो सबको सुखी देखना चाहते हैं।
हो सकता है हमारे परिवार के लोग, रिलेटिव्स लोग भी सुखी देखना चाहते, बट दे डोंट नो व्हाट इज द वे। वो सोचते हैं कि बेटा पैसा कमाएगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा, फैमिली बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन गीता में कहा है, ये ही संस्पर्श जाभोगा दुख ये नएवते अद्दवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। So those who are intelligent, they understand the path of sense gratification leads to only misery. ये दुखी देगा। और ये लोग नहीं जानते, प्रभुपाद जानते कि भगवान से जुड़ने से हम खुश हो जाएंगे। मछली को पानी में डालो और हमें भगवान से कनेक्ट करो, सेम थिंग, खुश हो जाएंगे। तो आगे प्रभुपाद ने कहा है, आवर प्रोसेस इज वेरी सिंपल। क्या बताया उसमें, कौन बताना चाहेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट? कोई भी आदमी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, chanting, simply by chanting Hare Chanting. Krishna. So easy. लेकिन it's so difficult for us because we are having jaundice, अविद्या। तो इसलिए बाकी चीज जो हम हेयरिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, भक्तों का संग, ये सब सपोर्ट करते हैं चैंटिंग हरे कृष्ण के लिए। किसने बोला प्रभु जी पता तो चल गया, आपका सेशन हो गया, आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण करना है, बाय बाय, हम हरे कृष्ण करेंगे। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू चैंट अलोन, क्योंकि आपको भक्तों के सपोर्ट की आवश्यकता होता है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए बाकी से सपोर्ट करता है। फिर प्रभुपाद ने बोला, व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा? पहला बेनिफिट, पहला इफेक्ट, इट क्लियर्स द डर्ट माइंड। यस, यू नो वी हैव सो मच डर्टी इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड। उस कारण से हम परेशान होते हैं। इमीडिएटली जैसे रूम साफ होता है, वो हरे कृष्णा मंत्र सफाई करते हैं हमारी चेतना की, और फिर आप हर जगह जहां पे देखोगे यू विल सी द प्योरनेस। सो इट्स बहुत इफेक्ट। और पहला अज्ञान, पहला जो डर्टी है, प्रभुपाद ने बोला है क्या? मिसकंसेप्शन ऑफ बॉडीली कंसेप्ट। यस, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। और ये एनिमलिस्टिक लाइफ है अगर इस प्रकार हम जीते, इसलिए इसको बोलते हैं एलो आरो गेलो। लोग आया और चला गया, कुत्ते बिल्ली की तरह हम जिए और फिर मर जाते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ? इस हमें जानना आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी MIT में जब गए थे, मसाज इंस्टीट्यूट में, प्रभुपाद ने पूछा, आपके पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, बट वेयर इज द डिपार्टमेंट द डिफरेंशिएट ए बॉडी एंड लिविंग बॉडी टू ए डेड बॉडी? वो ज्ञान कहाँ पे, जो मृत व्यक्ति को जीवित व्यक्ति के साथ डिफर करते हैं। तो सोचो आज कोई नहीं जानता है, सिंपल एक फिलोसॉफी नहीं जानते लोग कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और यही मिसकॉन्सेप्ट के साथ हो जाता है, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन, मैं भारतीय, फिर लड़ाई कर रहे हैं, आपस में झगड़ा हो रही है। तो ये एक्चुअली है। तो प्रभुपाद जी बोलता है कि डॉग्स आर रनिंग ऑन फॉर लेग्स एंड वी आर रनिंग ऑन फॉर व्हील्स। जब 4 कुत्ते को एक रूम में डाल दो, वो क्या करेंगे? आपस में लड़ाई करेंगे। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही। तो इसलिए ये ज्ञान में स्थित होना बहुत जरूरी है, लोगों को इस ज्ञान को देना। बट प्रीचिंग इज नॉट ए बिग थिंग, है कि नहीं? उनको जस्ट बताओ कि एक गीता है और इसमें बताया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उसको आप बहुत इजीली बताओ। तो प्रभुपाद जी ने एक सिंपल बताई, इट्स ए वेरी सिंपल फिलोसॉफी, हम शरीर नहीं आत्मा है, कॉमन सेंस के द्वारा हम जान सकते हैं। प्रभुपाद ने क्या एग्जांपल दिया? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल। प्रभुपाद ने कैसे प्रूव किया? बाय कॉमन सेंस। कोई बताना चाहेंगे? प्रभुपाद जी ने बताया कि बचपन में हम छोटे होते हैं कि नहीं, अगर आप लोग भी आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले आपके फोटोग्राफ देखो, छोटे हो आप, अभी आपका शरीर बिल्कुल अलग है, और बुढ़ापा में फिर आप अलग हो जाओगे। That means our body is changing. So this is a proof. But we still think I am same the person. इसका मतलब आत्मा परिवर्तन नहीं होता। फिर प्रभुपाद ने बताया कि आध्यात्मिक जीवन पालन करने का रिजल्ट क्या है? We become jolly. हम हैप्पी हो जाते हैं। उसका प्रूफ क्या है? ना सोचती ना कांक्षती। We don't lament, don't hanker. हम हैंकरिंग कर सकते कि हमारे पैसे हो, अच्छा जॉब हो, लेकिन कृष्ण के लिए, जैसे अर्जुन ने हैंकरिंग किया। हम लेमेंट करेंगे कृष्ण के लिए, बट भौतिक लोग में जब इसे लेमेंटेशन होता है और हैंकरिंग, वो नहीं होता है। सब लोग परेशान होते हैं, चाहते और मिले और दिल मांगे मोर, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एक दिन आते ही नहीं फिर। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने से इमीडिएटली वी बिकम जॉयफुल। ठीक है। फिर प्रभुपाद ने बोला और क्या है, बड़े बड़े जीवन में समस्या भी आएंगे। आप लोग बहुत स्टूडेंट्स हो यहाँ पे, है ना, और फैमिली लाइफ में भी है, कुछ लोग जॉब में भी है। आप देखोगे जैसे लाइफ बढ़ेगी, आप बड़े हो जाओगे, तो आपके जीवन में चैलेंजेस और भी आएंगे। अभी हमने पिछले पैंडेमिक में देखा, कोरोना में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, रिसेशन आ गया, एक प्रकार से बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों का। तो उस स्थिति में फिर कैसे संतुष्ट हो? प्रभुपाद ने बोला
by simply practicing Krishna conscious, हम बड़े सी भी बड़े समस्या जीवन में आएंगे, we don't get disturbed like Arjuna. और प्रभुपाद ने बोला, एक्चुअली यूनाइटेड नेशन के बारे में प्रभुपाद ने क्या बोला, कोई बताना चाहेंगे? What प्रभुपाद said about यूनाइटेड नेशन और इस्कॉन के बारे में, फिर याद है किसी को? ओके, तो ये यूनाइटेड नेशन बोलते हैं हम लोग यूनाइट हो जाएंगे, इतने सारे नेशन। प्रभुपाद बोले अलग अलग फ्लैग्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वो ज्यादा सेपरेट हो रहे हैं। पहले भारत एक था, भारत पाकिस्तान हो गया, भारत बांग्लादेश हो गया, कल कश्मीर अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो यही हो रहा है। लेकिन इस्कॉन इज रियल यूनाइटेड नेशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वी हैव हिंदूज, वी हैव मुस्लिम्स, वी हैव क्रिश्चियंस, वी हैव पाकिस्तानीज, एवरीबॉडी कैन कम टू इस्कॉन। प्रभुपाद हैज बिल्ट सच अ हाउस द होल वर्ल्ड कैन लिव, मतलब हर प्रकार के लोगों के लिए अकोमोडेटेड है ये। तो ये प्रभुपाद ने बताया। और प्रभुपाद ने बोला सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग वन श्लोक ऑफ भगवद गीता वी कैन बी सेल्फ रियलाइज, है कि नहीं? तो भगवद गीता सो इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने जो श्लोक पढ़ा वो भगवान ने स्वयं उच्चारण करते, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। तो उस श्लोकों का हमें पढ़ना चाहिए, खास करके आप लोग प्रयास करिए, जैसे हमने बताया था, अगर हर दिन 2 श्लोक पढ़ोगे 10 से लेकर 15 मिनट लगेगा, और अगले साल, इस साल के एंड तक आप पूरा भगवद गीता पढ़ लोगे। श्लोक पढ़िए, उसके अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, और उसमें से क्या एप्लीकेशन है अपने जीवन में डालिए। तो भगवद गीता को एक प्रभुपाद ने बोला एक श्लोक हो या एक वर्ड हो, उसको समझ जाओगे तो आप कृष्ण भावनामृत हो सकते हो। तो इसलिए इस प्रचार की आवश्यकता है, हमें लोगों को ये ज्ञान देना बहुत ही आवश्यकता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बताया। और प्रभुपाद ने फिर बताया कि जो सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेटेड है कि नहीं, प्रभुपाद ने सो कॉल्ड कहा कि कहने के लिए वो एजुकेटेड है, लेकिन उनके पास रियल एजुकेशन है नहीं। वो जानते नहीं हम आत्माएं शरीर है, फिर वो भो करते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ब्ला ब्ला करते रहते सिंपली। तो दे डोंट हैव रियल अंडरस्टैंडिंग एंड देयरफॉर दे बिकम डिस्टर्ब। तो इसलिए ये एजुकेशन हमें सोसाइटी में, स्कूल कॉलेजेस में भी देना है। हम लोग बहुत सारे स्कूलों में प्रोग्राम्स करते हैं, कॉलेजेस में वैल्यू एजुकेशन है ना, या पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स, इस प्रकार से ये लोगों तक ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि लोगों तक, गांव तक, शहरों तक ये ज्ञान फैले। और जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला निमित्त मात्र भव सब सासी, कि मेरे व्यवस्था से सारे कौरव मारे गए, तुम युद्ध करो अर्जुन ना करो, तुम जंगल में जाओ कि ना जाओ, लेकिन मेरी व्यवस्था से सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन अगर आप निमित्त बनते हो, निमित्त मात्र भव सब सासी, हे अर्जुन अगर आप निमित्त बनोगे यू विल बी ग्लोरीफाइड, आपका जीवन सफल हो। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्ट कर दिया है। प्रेडिक्ट क्या है कि पृथ्वी के गांव शहर शहर में और ये हरे कृष्ण मंत्र फैलेंगे, ये प्रचार होगा। हम माध्यम बने कि ना बने, लेकिन इफ वी बिकम द मीडियम, इफ वी बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ प्रभुपाद एंड चैतन्य महाप्रभु, वी विल बी ग्लोरीफाइड, आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। हम नहीं आएंगे तो कोई आके प्रचार करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस जो भगवत गीता के ज्ञान को समझिए, वीकली जो क्लासेस सेशन को आप ध्यान पूर्वक सुनिए, प्रैक्टिकली अप्लाई करिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और अपने जीवन को रेगुलेट करिए। साथ में आपके जो वर्किंग लाइफ है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें भी एक्सेल करिए। सो सेट एन गुड एग्जाम्पल, और फिर सोसाइटी में हम जो है एक प्रकार से क्रांति, रिवोल्यूशन ला सकते हैं, एंड दैट कैन ओनली हेल्प द सोसाइटी, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं विराम दूंगा। अभी 10 मिनट के लिए हम क्वेश्चन लेंगे, फिर ऊपर धर्मनारायणपुर राधा पाठ सारथी का दर्शन कराएंगे आप लोगों को। एक इंफॉर्मेशन है छोटा सा, कि जैसे आज आपने देखा कि हर बार सुबह 5:30 बजे आरती करते हैं, तो कोई अगर आरती करने में इंटरेस्टेड है, चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हो, सिद्धांत को नोट कर सकते हो। तो अगले बार आपकी बारी भी हो सकते हैं कि आप भी अपने घर में, अपने रूम्स में, सिंपल है, हम एक जूम मीटिंग करेंगे आपके साथ जो आरती करना चाहते हैं, तो फिर आपको हम समझा देंगे कि 5 से लेकर 10 मिनट में कैसे आरती कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं या आप घर में आपके फैमिली सपोर्ट नहीं करते तो आप उसको मत करिए, नहीं तो फिर आपके फैमिली से प्रॉब्लम हो जाएंगे ना, इफ दे डोंट सपोर्ट। और स्टूडेंट है तो आपको फिर डिफिकल्ट हो सकता है, बट दोज हु आर वेरी इजीली दे कैन डू इट, और फैमिली का सपोर्ट है या कोई यहाँ पे सीनियर डिवोटीज भी है, तो आप लोग अगर चाहें तो सिद्धांत ग्रुप प्लीज राइट डाउन देयर नेम। आई थिंक यहाँ पे सुमन मंडल, अमल सिन्हा, शशांक, केसवी, किस लिए हाथ उठाए इन लोगों ने? फॉर आरती प्रभु जी, आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ओके, चैट बॉक्स में अपना नाम डालिए अगर आप आरती करना चाहते हो।
हम जूम मीटिंग में आपको समझा देंगे कैसे करना है। आपके पास फोटो, सिंपल फोटोग्राफ्स भी होगा, आप कर सकते हो, तो हम उसको बता देंगे। तो एक आरती का सेवा है। फिर जो सुबह हम कीर्तन करते हैं, 5 मिनट का हरे कृष्णा महामंत्र और 2-3 मिनट का नरसिंह प्रेयर, अगर आप वो भी करना चाहते हो, चैट बॉक्स में आप नाम लिखिए, आपका नाम कि मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, तो संडे को आप कर सकते हो। फिर श्लोक, प्रभु ने जिस श्लोक गाया था, आज मैंने गाया, तो आप श्लोक का रिसाइटेशन भी करना चाहोगे तो आपको भी हम थोड़ा जूम मीटिंग में थोड़ा बता देंगे कैसे करना है। आप चैट बॉक्स में अपना अगर श्लोक रिसाइट करना चाहते हो आप लिखिएगा। और जो हम सोच रहे थे कि आप लोगों में से भी कुछ लोग जो है प्रेजेंटेशन, जैसे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था उसी प्रकार आप लोग भी वीकली 5 मिनट के लिए एक टॉक दे सकते हो। दिस वे आप भी कैसे बोलना है आप बोल सकते हो। हम टॉपिक आपको बता देंगे, जैसे मान लो आप लोगों ने कुछ टॉपिक दे दिया भगवान के ऊपर, कुछ हम टॉपिक पहले दे देंगे, आप पूरे वीक प्रिपेयर करके 5 मिनट सबके सामने बोल सकते हो। स्पीकिंग इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो चैट बॉक्स में आप अपना चॉइस बताइएगा। तो अभी जो है हर संडे को हम मिलेंगे इस प्रकार। 5:30 बजे उठना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कंबल से अपने आप को निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट, खास करके दिल्ली जैसी जगह पे इट्स वेरी कोल्ड। कोई बात नहीं, आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है, आप मुंह हाथ धो के फिर आप रेडी होके आ सकते हो। और ये कहते हैं सतोगुण की जो सुख है ऐसा ही होता है, शुरुआत में बहुत कष्ट लगता है, अरे यार अच्छा था, काश और आधा घंटा लेट हो जाता, 6 बजे अच्छा था, 1 जनवरी को 6 बजे किया था प्रभु जी लोग, आज 5:30, कल 5 तो नहीं कर देंगे। इट्स सो ब्लिसफुल। सुबह का जो नींद है बहुत मजा आता है, ओहो कृष्णा। तो लेकिन आप उसको त्याग के अगर आध्यात्मिक कार्य के लिए आओगे, आपको धीरे धीरे वो अमृत बन जाएगा। तो आध्यात्मिक जो सुख है या फिर जो सतोगुण की सुख है, शुरुआत में कष्ट होता है, बट लेटर इट बिकम नेक्टर। रजोगुण की जो सुख है वो शुरुआत में बड़ा आनंद देता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में ये सब में, लेकिन फिर बाद में आपको दुख बनता है। तमोगुण की जो सुख है वो सुख नहीं, दुखी दुख देता है, नशा करना, ये सब करना, ये सब। तो आप अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किए हैं, काफी लोग आए हैं इस मॉर्निंग प्रोग्राम में, और भी लोगों को आप जोड़ सकते हो। और खास करके इसका जो जापान सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रभुपाद जी के बारे में सुनना, डिस्कशन करना, इट्स रियली पावरफुल। तो इसको आप कंटिन्यू करिए, और घर में अगर पूरा नहीं कर सकते एटलीस्ट सुबह उठ के जो है प्रभुपाद जी के थोड़ा बुक्स पढ़ना या लेक्चर सुनना, और फिर जपा आप कर सकते हो। और फिर हर शनिवार को हमारे क्लासेस होंगे, और उसमें आप अगले बार शनिवार को प्रभुपाद जी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी के गुणगान के ऊपर, ठीक है। और आपके मेंटर के साथ भी आप जुड़े रहिए, जो आपके स्पिरिचुअल गाइड है। तो आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या आपके कुछ भी हो, यू कैन डिस्कस विथ योर पर्सनल मेंटर, स्पिरिचुअल गाइड, और ये अच्छा रहेगा। वी नीड सम गाइडेंस फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ, और इस प्रकार से हम ग्रेजुअली आगे बढ़े, क्योंकि मैंने बताया था कि इसको कंटिन्यू करना इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग, है ना। माया के प्रभाव से आप देखोगे लोग कम होते जाते हैं, है ना। तो हमें फिक्स अप होना है, वी हैव टू बी डिटरमाइंड कि हम कंटिन्यू करें थ्रू आउट होल लाइफ। तो अभी हम प्रश्न उत्तर लेंगे, फिर सिद्धांत आप धर्मनारायण को रिक्वेस्ट करेगा दर्शन के लिए। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैव? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। पहले सुमन मंडल, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। ओके, सबको वीडियो ऑन करने के लिए बोलना क्वेश्चन जो पूछते हैं। जी, आपकी वीडियो ऑन है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि कल सेशन हुआ था, उसमें मतलब जप के बारे में बताया था कि जप में हरे कृष्णा और राम, ये 3 नाम है। तो हरे कृष्णा में हरे में हमें ह और रे दोनों सुनना है, कृष्णा में कृष्ण और ना, और राम में रा और मा। तो मैं जब बोलती हूँ तो मतलब मैं जब चैंटिंग करती हूँ तो मेरा, जैसे कि मैं चैंटिंग कर रही हूँ तो मुझे पूरा मतलब मैं वर्ड सुनती हूँ, अक्षर नहीं सुनती। मतलब जैसे हरे बोला तो हरे, हाँ, that's okay. कृष्णा, That's okay, yes. हरे कृष्णा। तो उसी प्रकार भी धीरे धीरे आप पूरा मंत्र भी सुनोगे, पूरे 16 वाला आप सुन सकते हो। मेन थिंग इज हियरिंग, है ना, हरे कृष्णा। और ये भी मन में उस संबंध जोड़ना जरूरी है कि इट्स नॉट आर्टिफिशियल नेम। प्रभुपाद बोले कोको कोला कोको कोला कोको कोला, पेप्सी पेप्सी, आप ज्यादा दिन बोल नहीं पाओगे। और आप भी सोचो कि हरे ऐसे बोलते रहोगे, लेकिन आप फील नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे दिस इज कृष्णस नेम, तो काफी बार ड्राइनेस हो सकती है। सो यू हैव टू कनेक्ट विद द लॉर्ड्स नेम कि हरे कृष्णा कृष्ण। आप सुनो भी, दिस इज द नेम ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का संग प्राप्त कर रहा हूँ, और ये कृष्ण का नाम है, कृष्ण से डिफरेंट नहीं है। तो ये भी आप
जो है धारणा मन में रखना है। ओके, बाकी आप सुन सकते, नो प्रॉब्लम। आप हरे सुनिए, कृष्ण सुनिए, राम सुनिए, इट्स वेरी पावरफुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है शशांक कौशिक प्रभु का। ओके, हरे कृष्णा, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं प्रभु जी अपनी? आप सिद्धांत कौशिक है, ये शशांक कौशिक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ओके, यस ब्रो। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ब्रह्मा जी से शिव जी आए हैं और उन्हीं से नारद जी आए हैं, तो लेकिन ब्रह्मा जी तो अमर नहीं है, मतलब उनका तो एक बहुत लंबी उम्र है, लेकिन नारद जी की तो फिर नारद जी तो अमर है, फिर वो ओके, कैसे? तो ये भगवान का जो है प्रकट होने का वो रहता है। जैसे बड़ा भगवान ब्रह्मा जी के नाक से आए, तो बड़ा तो भगवान है, बोले भगवान कैसे आ सकते ब्रह्मा जी से? सो दैट इज ए पार्ट ऑफ, ब्रह्मा जी एक लिविंग एंटिटी है, और शिव जी भी ब्रह्मा जी से आए। शिव रुद्र जो है उनकी भ्रुकुटी से उत्पन्न हुआ है, तो रुद्र इज ऑल्सो जो है शिव तत्व अलग ही होते हैं। और नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि को स्पेशल कृपा प्राप्त हुआ है। नारद मुनि अगर आप पढ़ोगे भागवतम, ही वाज ए ऑर्डिनरी बॉय, ही वाज ए सन ऑफ ए मेड सर्वेंट, लेकिन उन्होंने भक्तों की बहुत सेवा की। तो नारद मुनि फिर बाद में जाके हिमालय में तपस्या करते हैं, भगवान का दर्शन होता है, अगले जीवन में उनको नारद मुनि का जो है शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक आने का मीडियम हो सकता है। सो जैसे मैंने बताया, बड़ा भगवान भी भगवान बड़ा जो है ब्रह्मा जी के नाक से निकले हैं, तो ये एक उनका जो है आने का सोर्स सही होता है, तो इसलिए था। लेकिन ब्रह्मा जी एक साधारण जीव है, आप भी ब्रह्मा बन सकते हो, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो इंडिया के, है कि नहीं? उसी प्रकार अगर हम पायटी करते वी कैन बिकम ब्रह्मा। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि ब्रह्मा बन के भी क्या होगा अगर हम कृष्ण भक्त नहीं हुआ, फिर से आना पड़ेगा। स्वर्ग के देवता को अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देयर लाइफ ड्यूरेशन इज वेरी वेरी लॉन्ग। तो मत्सर बोलेगा कि शशांक प्रभु तो अमर है, कि मत्सर तो एक ही दिन में उसका शुरू होता है, एक ही दिन में समाप्त होता है जीवन, और हमारा इतना लंबा समय, तो हमारी तुलना में देव देवियों का जीवन बहुत लंबा है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्य व्रत साहू प्रभु का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सौम्यव्रत प्रभु है, ठीक है, नेक्स्ट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नत जी का। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे गीता के चैप्टर 6 में वर्स 47 में भजंती और वर्शिप के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा था, डाउट सा आ रहा था, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते तो। किसमें 6.47? हाँ जी। तो मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस बता सकते हो, मतलब तब मैं अब क्या बताया, आप क्या जानना चाहती हैं? एक्चुअल डिफरेंस क्या है भजंती और वर्शिप में? ओके, जैसे वर्शिप है, एक्चुअली भजा मीन्स आराधना करना भगवान की, ठीक है। जैसे भजा एक धातु है, उसमें ही निकला है। और वर्शिप में एक प्रकार से पूजा हो सकता है, जैसे बोलते कि हम भक्ति जो देवताओं की नहीं हो सकती, वर्शिप हो सकता है, मतलब है ना। तो क्योंकि भजा का एक्चुअल वर्ड अंग्रेजी में है नहीं, जैसे शरणागति का, हम भगवान का शरणागत होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग जो है हम अंग्रेजी में नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने शरणागति को सरेंडर बोला है। तो भजो को भी एक्चुअली वर्शिप कहा गया है। तो एक्चुअली भजा मतलब भगवान की भजन करना, भगवान की आराधना करना है। तो ओके, इसमें क्यों सामने निकाल, ओके प्रभु, यस। पढ़िए आप माता जी, पढ़िए मन्नत माता जी, कहाँ पे कौन सा वर्ड है? The word bhajate is significant here. Bhajate has its root in the verb bhaj, which is यस used यस, अब when भजा there एक is संस्कृत है, तो भजा से फिर भजंती हो गया, ठीक है, यस। The English word worship cannot be used in the same sense as bhaj. Worship means to adore or to show respect and यस, honor. ठीक है, आई अंडरस्टूड। सो यही मैं बता रहा था आपको। तो वर्शिप जैसे देवताओं की पूजा कर सकते, लेकिन देवताओं की भजन नहीं होता, देवताओं की भक्ति नहीं होता है। आप रेस्पेक्ट सब कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हैं, तो इसलिए उसको कंपेयर, मतलब क्योंकि भज धातु का एक्चुअल अंग्रेजी में वर्ड नहीं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मतलब शरणागत होना, सरेंडर मतलब कि हैंड्स अप, सरेंडर हो जाते नहीं। लेकिन शरणागत ऐसा नहीं, फोर्सफुली हम भगवान के शरणागत नहीं होते, हम प्रेम पूर्वक होते हैं, लेकिन क्योंकि वर्ड है नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने सरेंडर यूज किया। ओके, थैंक यू। Thank you, Prabhuji. थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सौम्य व्रत साहू, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी अपने आप को।
हरे कृष्ण प्रभु जी। वीडियो ऑन प्रभु कर सकते हैं जी, प्रभु जी? यस सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता के 8.5 चैप्टर में लिखा है कि अंतकाले च मामेव स्मरण कलेवरम यह प्रयति समद्भावम नास्ति यत्र संशय। किंतु मैं अमोघ लीला प्रभु जी सुना था कि मरते समय 45,000 बिच्छू काटने के समान पेन होता है। मैं समझ उस समय समझ गया, ठीक है। तो बिल्ली चूहे को भी ले जाते हैं, ठीक है। बिल्ली जब चूहे को पकड़ते हैं तो बड़ा दर्द होता है, वो मर जाता है चिल्ला चिल्ला के। लेकिन बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चों को भी उठा के ले जाती। दर्द होता है बच्चों को, है नहीं? तो बिल्ली, जिस प्रकार एक बिल्ली चूहे को पकड़ते हैं, वो है मृत्यु, ठीक है। जो भक्ति में नहीं है, जो भक्ति योग में नहीं है, तो भगवान मृत्यु के रूप में आते, तब 40,000 बिच्छू के समान डंक मारने के समान पेन होता है। वेरी वेरी पेनफुल। लोग इसलिए मृत्यु से भयते, हम भी भय करते हैं। Actually, why we are fearful about that? Because we have that experience. लेकिन जो भगवान के भक्त है, उसकी मृत्यु कैसी होती है? आंखें बंद करेंगे और अगला जन्म भगवान के धाम में। वो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ना जैसा, उनको पेन नहीं होता है। आप जैसे अजामिल की कथा सुनोगे ध्रुव महाराज के, तो भगवान की विष्णुदूत आके उनको लेके जाएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? So devotee doesn't suffer like the कर्मीज। ओके प्रभु जी, अगर कुछ रीजन की वजह से अगर भगवान को याद नहीं किया जा सका तो क्या होगा? तो गीता में एक श्लोक है, 6th चैप्टर में आप पढ़िएगा, आई थिंक 40 के पास है वो। शुचि नाम शिवताम गृहे। सो इफ यू कैन कंटिन्यू योर भक्ति, मान लो 4 उंगली भक्ति करना था, आपने 3 उंगली किया, ठीक है। अगला जीवन आपका या तो बहुत धनी परिवार में होंगे या भक्तों के परिवार में होंगे, ताकि आप आसानी से भक्ति को कर पाओ। और आप भक्ति कहाँ से शुरू गए? यहाँ से शुरू करोगे, जीरो से नहीं, जहां खत्म किया वहां से। एग्जाम्पल भरत महाराज, भरत महाराज का एग्जाम्पल है। भरत महाराज ने की भक्ति किया, लेकिन उनका परफेक्शन नहीं हो पाया। हिरण का शरीर मिला, लेकिन हिरण के शरीर में भी उन्होंने भक्ति किया, और फिर आगे जाके ही बिकम परफेक्टेड, ठीक है। तो भक्ति करना क्या है? स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कोई भय नहीं है। भक्ति अगर करोगे, आप महान भय से बच सकते हो। आप पशु नहीं बनोगे, नरक नहीं जाना पड़ेगा, यमदूत नहीं आएंगे। इसलिए बोलते जो कंठी पहनते हैं, जो कंठी पहनते, तिलक लगाते, हरे कृष्ण करेंगे, यमदूत नहीं आएंगे, चिंता मत करो। बस अपराध मत करना, यमदूत नहीं आएंगे। तो कभी हम चर्चा करेंगे यमदूत कैसे, कुछ चर्चा भी होता है यमदूत के बीच में, हम कभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी। तो यमदूत भक्तों के पास नहीं आएंगे, विष्णुदूत आएंगे या धर्मदूत आएंगे, फिर अगला शरीर उनको भक्तों के घर में जन्म होंगे, ठीक है। तो हमें भय करने की आवश्यकता नहीं है। एक रास्ते की कुत्ता होता है स्ट्रीट डॉग, और एक मालिक का कुत्ता। तो स्ट्रीट डॉग दिल्ली में भटकते रहते हैं ना, एमसीडी वाले उठा के लेके जाते हैं उसको, फिर मार देते हैं। लेकिन जो मालिक का कुत्ता होता है, उसके गले में पत्ती होता है, अरे नहीं इसके मालिक होंगे। तो यमदूत आगे देखें, अरे ये तो सौम्यवत प्रभु तो कंठी है, इसके नहीं, इसको नहीं करना है कुछ, इसके लिए प्रभु जी करेंगे व्यवस्था। तो हम भगवान के डॉग है, हम भगवान के कुत्ते हैं, प्रभुपाद जी के कुत्ते हैं। तो फिर यमदूत स्पर्श भी नहीं करेंगे, दूर भी नहीं आएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। 7:40 हो गए हैं। ओके, यू टेक फॉर 5 मिनट्स मोर। ओके प्रभु जी। तो नेक्स्ट है अग्रिम प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ये नहीं हो रहा, आपकी आवाज आ रही है हमें जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि मैंने, अगर कि हम किसी से पूछते हैं, कोई इंसान अगर कि मेरे घर में कोई एक है, मेरी बहन है, वो मतलब शिव जी की करती है, तो मैंने उसको फिर बोला, तो फिर वो बोलती है कि फिर ऐसा शिव पुराण में क्यों लिखा है कि शिव जी बड़े हैं। तो ठीक है, मैं समझ गया। तो देखो, हमें लोगों को इंस्पायर करना है, फोर्स नहीं करना है कि हम कृष्ण भक्त थे, आपको बनना ही पड़ेगा कि हम बेहतर है आपसे, नहीं। तो शिव जी की भी भक्ति अगर करेंगे, शिव जी वैष्णव नाम यथा संभव, भगवान के परम भक्त है, तो शिव जी को अगर सिंसियरली प्रार्थना करेंगे, आप थोड़ा उनको शास्त्र से बता सकते हो, तो समझ जाएंगे एक्चुअली शिव जी भगवान के भक्त है, और फिर शिव जी के कृपा से वो कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। तो जैसे मैंने पहली बार बताया था कि 18 पुराण है, उसमें से 3 भाग किया है, सतोगुणी के लिए 6, रजोगुणी के लिए 6, तमोगुणी के लिए 6। तो सतोगुणी में विष्णु पुराण ये सब आते हैं, तमोगुणी में शिव पुराण, काली पुराण आते हैं। तो क्योंकि तमोगुणी लोग जो मांसाहार कर रहे हैं, गलत काम में लगे हुए हैं, वो फिर कैसे कृष्ण भावनामृत होंगे? तो उनके लिए इस प्रकार ग्रेजुअली, जो शिव जी कोई साधारण जीव नहीं है, तो कहते हैं जिस प्रकार दही से, दूध से दही बनता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ही जो है, जब तमोगुण के उसमें आ जाते हैं कनेक्शन में, वो शंभु तत्व में आ जाते हैं, तो वो रुद्र तत्व कहा जाता है, शिव तत्व अलग ही होते हैं। तो शिव जी के इसलिए जब जो आराधना करेंगे, अगर सिंसियरली करेंगे, तो ग्रेजुअली वो भी प्यूरिफाई होकर कृष्ण भावना में आ सकते हैं।
तो तमोगुणी लोग को आराधना करने के लिए, तो उनको ग्रेजुअली अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनको ये सुविधा दिया गया है। तो जैसे हमने बताया था काली जी की जो वर्शिप करते हैं, तो उनको बोलते ठीक है मांसाहार खा सकते हो, क्योंकि लोग मांस मछली गंदे काम कर रहे हैं, तो जो है डायरेक्टली वो कृष्ण भावनामृत में हो सकता है नहीं आ पाए, है ना, नियमों का पालन नहीं कर पाए, तो उनको बोले ठीक है आप एक अथॉरिटी को स्वीकार कर लो, आप ये नियम पालन कर लो, फिर ग्रेजुअली उनको अपलिफ्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग पुराण दिया गया हुआ है। इसलिए जो व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए पुराण लिखने के बाद, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। श्रीमद् भागवतम में अमल पुराण है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कृष्ण ही परम भगवान है, उसमें क्लियरली बताया गया। ठीक है, और हमें आर्गुमेंट ज्यादा नहीं करना है, हमें उनको प्रीच करना चाहिए, शास्त्र में इस प्रकार बताया गया है, प्रेजेंट करो। और किसी में तो फेथ है उनका, कि लोगों का फेथ ही नहीं होता है, फिर आपके आचरण को देख के वो परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, और शिव जी महान भक्त है भगवान के, और शिव जी के अगर उनको प्रे भी करेंगे शिव जी से कि है ना मुझे आप एक्चुअल ज्ञान दो, बोले आप ऐसे प्रे कर सकते हो उनको बोलो, तो अगर एक्चुअल ज्ञान क्या है, एक्चुअल भगवान की शरणागत हो, तो ग्रेजुअली फिर वो भगवान कृष्ण की शरणागत होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे दिख रहे हैं धर्मनारायण प्रभु जी। धर्मनारायण प्रभु जी, तो हरे कृष्णा। यू कैन 2 minutes यू कैन टेक 1-2 क्वेश्चन। प्रभु जी आई थिंक वो अभी दर्शन करा ही रहे थे, आई थिंक ही हैड स्टार्टेड हिज वीडियो। ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो चलेगा अभी 8 बजे तक हमारा है समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? प्रीतिका शर्मा जी, हरे कृष्णा। क्विकली हम बता देते जिसका प्रश्न है जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे गीता में लिखा है ना, अकर्म विकर्म और सकर्म, ओके, तो उसको बता देंगे? ओके ठीक है। तो सकर्म मतलब शास्त्र के आधार पर करना, अच्छे काम करना, वो करेंगे तो हम पायटी होगा, हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं या अच्छा जन्म होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। विकर्म मतलब गलत करना, चोरी करना, डकैती करना, गलत काम करना, मांसाहार करना, शास्त्र के गलत में करना, वो करेंगे तो पाप होगा हमें, और हम फिर नरक के आगामी होंगे। तो अकर्म मतलब जो कर्मफल नहीं होता है। तो एक प्रकार से अकर्म का 2 डेफिनेशन होता है गीता के अनुसार। एक तो अकर्म मतलब कुछ काम नहीं करना, और एक अर्थ होता है जिस काम करने से कर्म बंधन में नहीं फंसते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो चक्र में नहीं फंसते, वो भक्ति योग है। ठीक है, अगर आपने मान लो अर्जुन ने युद्ध किया, ठीक है, धर्म के अनुसार युद्ध किया तो उनका कर्म हुआ, और दुर्योधन ने भी युद्ध किया, उनके लिए विकर्म हुआ, लेकिन अर्जुन ने क्यों के लिए, कृष्ण के लिए युद्ध किया, तो वो अकर्म बन गया, भक्ति योग। तो उसके लिए आपके लिए जो आप ऑफिस में जाते होंगे, पैसे कमाते होंगे या जो भी करते हैं, लेकिन अगर आप कृष्ण के लिए करते हो, वो अकर्म बन जाता है, कर्म बंधन में हम नहीं फंसते। ठीक है, तो दैट इज अकर्म। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। लास्ट 2 क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौविक सिंह प्रभु का। सौविक सिंह प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कोई लोग अच्छा काम करते हैं तो उन्हें स्वर्ग या उससे बड़ा लोक प्राप्त होता है, तो फिर वो पाताल लोक वो सब ओके, जो गलत काम करते, पाप करते हैं, 4 नियम को जो तोड़ेंगे वो नीचे की लोक में जाएंगे, पाताल में। फिर नरक का वर्णन है, अलग अलग प्रकार के नरक में फिर सजा भुगतना होगा। ठीक है, जो पापी आत्मा होते हैं वो फिर नरक जाते हैं, फिर पनिशमेंट होगा, फिर वो बाद में उनका जन्म होगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन है अर्नव सब्बरवाल प्रभु जी का, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल ये था कि जो योनि मिलती है नेक्स्ट जन्म में, तो वो कर्म के हिसाब से मिलती है, एंड में जैसे हमने सोचा उस हिसाब से मिलती है? मतलब तो एंड लोग बोले बड़ा अच्छा चीज है, अंतकाले च मां में वह, तो कल मैं बूढ़ा हो गया, आज भगवान का चिंतन करना शुरू किया हूँ, तो हम जैसा कर्म करेंगे उसके आधार पे आपकी चेतना बनेंगे, ताकि अंत में आप रिमेम्बर कर पाओ भगवान के। इट नीड प्रैक्टिस, पूरे जीवन भर जो आप कार्य करोगे वो उसके हिसाब से आपका वो चिंतन होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अंत में मैं सोच लूंगा भगवान के बारे में, तो अंत में भी चिंतन उसी प्रकार होगा, आपके जैसे डिजायर्स हैं या पूरे जीवन अपने जो कार्य किया। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे एक दो, ठीक है, एक ले लो और लास्ट क्वेश्चन है अमल सिन्हा जी का, वो आई थिंक पहले से वेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कभी कभी हम जैसे नहा नहीं पाते हैं, पानी चला जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रभु जी उस समय हम प्रभुपाद जी की वॉइस के साथ माला कर सकते हैं? हम लोग बिना नहाए भगवत गीता पढ़ सकते हैं, हम लोग जप कर सकते हैं, हम प्रभुपाद के लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर मुंह हाथ धो सकते हो अच्छा है, लेकिन अगर सतोगुण में जितना रहेंगे, नहा के तिलक लगा के कपड़े फ्रेश पहन के करेंगे तो ज्यादा
आपको अच्छा लगेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में हम जाप और रीडिंग हियरिंग कर सकते हैं। सिर्फ भगवान की जो आरती करते हैं उसके लिए नहाना जरूर होता है, ठीक है। और बाकी गौमूत्र है, गौमूत्र छिड़क लो, आप गौमूत्र छिड़क सकते हो, उससे शुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं फिर हम? हाँ ठीक है, ले लो, अभी समय थोड़ा सा। एक राजेश सिंह प्रभु हैं, हरे कृष्ण। हेलो हेलो, हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर जी, बताइए। सर हमारे एरिया में हम इस्कॉन में अटैच होना चाहते हैं, तो आप कौन से एरिया में हो, कहाँ से बोल रहे हो? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर। बिलासपुर, रायपुर में हमारा इस्कॉन मंदिर है, तो मुझे एक बार बिलासपुर, आपका नाम और फोन नंबर सिद्धांत प्रभु को दे दो, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। बिलासपुर में है शायद, मैं चेक करके आपको, रायपुर में है और आप वहाँ पे जोड़ सकते हो। तो ग्रेजुअली जैसे कोरोना खुल जाएंगे, आप लोग भी जो आसपास के मंदिर है जा सकते हो। और इस्कॉन दिल्ली में भी आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन फिजिकली भी आप आ सकते हो, मंदिर का दर्शन कर सकते हो, प्रसाद पा सकते हो। सो आप लोग स्वागत है। तो हम लोग वृंदावन की यात्रा भी जाते हैं, तो आप सब जहाँ पे वृंदावन यात्रा के लिए भी आ सकते हो। यस प्रभु। जी प्रभु, वो क्वेश्चन था कि जैसे कि हम हिंदू धर्म के हैं, तो हमारे हिसाब से ओके, हिंदू नाम के कोई धर्म है ही नहीं, पहले तो ये मजे की बात है, ठीक है। हिंदू नाम के शास्त्र में कोई धर्म नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सिंधु नदी के तट पे इसलिए हिंदू बोला जाता था। तो ये है सनातन धर्म, ठीक है। ओके, प्रश्न पूछिए। तो जैसे कि हम मीट मांस खाना ये सब हमारे लिए नहीं है। हाँ तो जी। जो मुस्लिम है जो, तो उन लोग के लिए जैसे कि उन लोग के जो पंडित है जो है, उन लोग से पूछो तो अपनी बेस्ट बोलते कि हमारे गॉड सबसे ऊपर है, हम बोलते हमारे गॉड सबसे ऊपर है। वो उनके हिसाब से ऐसा बोलेंगे, ऐसा उनसे बताएंगे कि वही सही है। और हमारे तो जो इसलिए हमें शास्त्र के आधार पे हमें बोलना है। तो कि भगवत गीता कब बोला था, उनकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, और उनको भी हमारे पास एक किताब भी है। हम हर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड क्रिश्चियनिटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सिखिज्म, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड मुस्लिम, सारे धर्मों का निचोड़ एक है। अल्लाह मतलब क्या, द ग्रेटेस्ट, वही कृष्ण है, ठीक है। जैसे हमने बोला गॉड इज ग्रेट, तो लेकिन गॉड कौन है, अल्लाह कौन है, उसका नाम क्या है। और उसमें भी अल्लाह के, उसमें भी 99 नेम लेते हैं, वो भी माला करते हैं, जब करते हैं अल्लाह का 99 नेम लेते हैं। तो वहां पे उनका कंडीशनिंग है, जैसे हमने पहले बताया था, वो लोग क्योंकि बहुत सिंफुल एक्टिविटी करते थे, तो डायरेक्टली वो कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकते। तो उनको इसलिए प्रोफेट मोहम्मद आके उनको ऐसा सर्कमस्टेंसेस में, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, उनको इस प्रकार भक्ति करने का विधि दिया है। तो लेकिन वो मुस्लिम धर्म पालन अगर करेंगे तो एक दिन वो कृष्ण भावनामृत इस्कॉन में आ सकता है, या वैष्णव धर्म लेंगे, डायरेक्टली भगवान के धाम नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे स्वर्ग और नरक की वर्णन है, आध्यात्मिक जगत का वर्णन है ही नहीं, ठीक है। तो हमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं, तर्क करोगे तो समय ही वेस्ट होता है, ठीक है। उनका पता से थैंक यू, आप मुस्लिम धर्म का पालन करो अच्छी तरह से, लेकिन मुस्लिम एक्चुअल मुस्लिम बनो आप। ऐसा नहीं कभी भी आप मीट खाना शुरू करो, वहां पे नियम है किस प्रकार आपको खाना है, अलग अलग सूरा बोलते हैं उसको पालन करो। तो हम एक सेशन लेंगे, उसमें आप लोगों का क्लियर होगा कि इट्स ए लॉन्ग सेशन। अगर भगवान एक है, अनेक धर्म क्यों है, हम उसको बीच में कभी लेंगे, तो उसमें आप लोगों का सब डाउट क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, सिद्धांत प्रभु धर्मनारायण को रिक्वेस्ट कर सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। धर्मनारायण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर आप हम सबको दर्शन करा सकें प्लीज। श्री श्री राधा पार्थ साथी जी, हरे कृष्ण। आप देख सकते हैं कीर्तन हो रहा है मॉर्निंग में, तो आप लोग भी आइएगा, कीर्तन करिएगा, नाचिएगा, गाइएगा। यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े भगवत गीता है, उसका भी दर्शन कर सकते हो, और इस प्रकार से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अगले संडे को फिर से मिलेंगे। दर्शन हो रहे हैं प्रभु? जी प्रभु जी, अभी फिर से स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हो ना प्रभु जी? मैं अभी होस्ट नहीं हूँ, धर्मनारायण प्रभु जी ही होस्ट हैं अभी। ओके, उनको एक बार साउंड बंद भी हो रहा है क्यों बार बार? इस प्रकार हर संडे को भक्त लोग ना हमारे मंदिर में आते हैं, गुड़गांव में हो, कोई फरीदाबाद में, नोएडा में है ना। और कभी आप लोग आना चाहते तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, आप रुक सकते हो। इस प्रकार प्रभु ऑडियो चला दो। तो 5 मिनट दर्शन होगा, आप लोगों को 5 मिनट दर्शन कराएंगे, फिर
आप लोग क्विट कर सकते हो। हमने समय रखा है 5:30 से 8। तो ये हमारे गौनिताई भगवान है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय। ये है नरसिंहदेव भगवान, जो हमने नरसिंह प्रेयर किए। तो भक्ति के जो बाधा विघ्न ये दूर करते हैं भगवान। हमारे जीवन में जो भी बाधा हो, तो इनका नाम है नरसिंहदेव। नरसिंहदेव भगवान की। हरे कृष्णा। ये नरसिंहदेव के दर्शन करिए आपको। आप सब कभी आ सकते हैं और इसका 10 शताब्दी में भाग लें। अब हम लोग दर्शन करिए 4 पाठ। पिछले सैटरडे आपको किया था ललिता करिए और सुंदर कीर्तन का आनंद लीजिए। ये है प्रभुपाद पुस्तक वितरण मैराथन का जो मॉडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत कई सारे ये एक मॉडल है कैसे प्रभुपाद की पुस्तकें पूरे विश्व में दर्शाना है। कई सारे इवेंट बताया गया यहाँ पे।
हरे कृष्णा। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है। आप लोग सुबह 5:30 बजे उठ के अपने संडे को इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये परफेक्ट वे है। हम सुबह पहले मंगल आरती करते हैं, उसके बाद हम साथ में जपा करते हैं। ये बहुत ही ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस होते हैं जिसमें हम एक्चुअल में फील कर सकते हैं कि कैसा ट्रांसेंडेंस जो हमें महसूस नहीं होता है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे इलेक्ट्रिक वायर जैसे होती है। बट जब हम सब चैंट करते हैं, उसके बाद श्रीला प्रभुपाद जी का लेक्चर और उसके बाद फाइनली दर्शन। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप हमसे जुड़ते आ रहे हैं संडे को, अपना परफेक्ट वे टू स्टार्ट द वीक जिसे कहा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। जिन लोगों का क्विज रह गया था कल, उनका आज फिर से क्विज होगा दोपहर को 2 बजे। तो आप फिर से क्विज दे सकते हैं। बट अगर आपने पहले ही दिया हुआ है क्विज तो आप मत दीजिएगा, ये सिर्फ उनके लिए है। कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट आए थे जो नहीं दे पाए थे, तो सिर्फ उनके लिए है क्विज। आधे घंटे के लिए खुलेगा। अगर आप दे चुके हैं ऑलरेडी तो आपको देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट हमारा ऐसे राइटिंग जो रहता है, उसके टॉपिक आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। उसका आपको 20 जनवरी से पहले आपको उसके ऐसे सबमिट करना होगा। और हमारा 26 को समर्पण फेस्टिवल है, कल्चरल प्रोग्राम, आप उसमें जरूर आइए। और मुझे अभी एक रिक्वेस्ट आया था अमल सिन्हा प्रभु जी का, अगर हमारे पास 1 मिनट है, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं। हरे कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और आप सभी के मुझे मैसेजेस आ गए हैं जिन सब ने रिक्वेस्ट करी है सर्विस की। आप मुझे अलग से भी मैसेज कर सकते हैं सो दैट हम कांटेक्ट में आपको जरूर विल गेट इन टच विद यू कि आप नेक्स्ट सेशन में होपफुली
आप अपनी सेवा कर सकते हैं। कोई रिसाइटेशन करना चाहता है भगवत गीता का, जैसे मुझे रिक्वेस्ट आया रिसाइटेशन का और पूजा करने का भी, मंगल आरती करने का, तो आप जैसा चाहें वैसे सर्विस कर सकते हैं। स्पीच जैसे थोड़ा सा आप देना चाहते हैं, बिकॉज मैंने कई लोगों का पर्सनली प्रेजेंटेशंस लिए थे और दे वर वंडरफुल प्रेजेंटेशंस, मतलब बहुत ही अच्छे टॉप क्लास रेटेड। आई बिलीव मेरे जितने प्रेजेंटेशंस थे जिन्होंने मेरे सामने दिया था, टॉप 10 में टॉप 4 विनर्स तो वही हैं जिन्होंने मेरे सामने प्रेजेंट किया था। तो आई एम वेरी श्योर दैट वो टॉप 4 और बाकी 6 भी जितने भी प्रेजेंटेशंस हैं वो तभी आए हैं बिकॉज, एंड इवन अदरवाइज एवरीबडी वाज वंडरफुल। तो आप स्पीच दें, हमें भी अच्छा लगता है। आप अपनी नॉलेज बता सकते हैं, आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। हमें जो भी नॉलेज मिलती है हम उसको बांटें, तो हमारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हम बाकी लोगों के भी सामने कल जाके बता सकते हैं। तो अब ये हमारा सेशन होगा नेक्स्ट संडे को फिर सुबह 5:30 बजे, और सैटरडे को शाम को सेशन होंगे हमारे फिर से श्रीला प्रभुपाद जी के ऊपर। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज अमल सिन्हा प्रभु इज नॉट विजिबल टू मी एनी मोर। That's it. तो thank you again. अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, आप बताना चाहेंगे सबको क्या दिखा रहे हैं आप? प्रभु जी। जी। जी, आपकी वीडियो चल रही है, आप दिखाइए। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जब मैं तिलक लगाती हूँ। नहीं, आपका क्वेश्चन है या आप हमें जगन्नाथ जी का दर्शन करा रहे हैं जो आपकी सिस्टर ने हाथ से बनाया है? जी, क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन था। जी, पूछिए प्लीज। जी प्रभु जी, जब मैं तिलक लगाती हूँ ना तो आसपास के लोग बोलते हैं तुम्हें सन्यासी बनना है, साध्वी बनना है, तो प्रभु जी मैं क्या करूँ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सॉरी मैं एक्चुअली होस्ट नहीं था। जी, आपको बोलते हैं कि आप ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे। जी प्रभु जी। तो देखिए, लोग तो कहते रहते हैं, अगर आप टीका लगाने के बहुत, आप पानी से भी लगा सकते हैं। जैसे कई लोग हमारे भक्त हैं वो ऑफिस जाते हैं तो उनको भी ऑफिस में लोग बोलते हैं ऐसे, तो आप पानी से भी लगा सकते हैं ऐसा। जी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लोग तो आप कुछ भी करेंगे तो वो लोग बोलेंगे ही आपको। तो आप जैसे जानना अवधूत प्रभु जी ने बताया था, आपको हर एक को जरूरत नहीं है आपको समझाने की या जवाब देने की। तो आप उनको बोलिए ठीक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात कंसिडर कर रही हैं, ऐसा नहीं है मैं कहीं जा नहीं रही, मैं यहीं पे ही हूँ। टीका लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं जा रहे हैं। जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्वेश्चन प्रीतिका शर्मा जी का। हरे कृष्णा। प्रभु जी हो गया मेरा। Oh, very good. Thank you very much. Thank you for asking your question. Thank you all. आप सभी के साथ I feel totally gratitude. आप सभी को मैं देख रहा हूँ, तब से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ. So thank you again. We are all progressing in the spiritual path together, which is wonderful. हरे कृष्णा। अब आपसे मुलाकात होगी शनिवार को शाम को सेशन में, और फिर संडे को सुबह 5:30 बजे। हरे कृष्णा। Thank you very much again.